Good morning, dear students. How are you all? I know you all are good. Okay, so student, let's begin our class today, and we have to begin with the lesson number 1, the story of a village, Palampur. As we have already covered our last chapter, that is lesson number 2, people as resources. As the revision series is going on, so I'm going to divide all the videos in short parts so that you can watch them easily and didn't get bored. Okay, so dear students, let's begin with a short prayer. So join your hands and close your eyes and repeat after me. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for protecting us and keep blessing on us. Thank you. So dear students, maybe my phone is little bit shaking because I'm not in the habit of making video like this, but I'm not able to get the proper view of the village from where I make the videos. So that's why I'm taken this. After very soon I'm going to keep it as it is. Okay, so why I am showing you this kind of thing, actually I have tried to explain it through pictures so that you can remember each and every point clearly. So this is village Palampur. Okay? In this video we are going to start with the introduction. This is village Palampur. In this village there are 450 families, okay, and almost all categories or all caste people are living here. Agriculture is the main factor. Fine, main factor in what sense? Is the main activity, you can say. 75% of the peoples are engaged in the agriculture sector, right? And students, there are 4 factors of production, that is the land, labor, capital, the money, and the entrepreneur. Hope you are able to see the entrepreneur now, right? So in this chapter we are going to discuss about the 3 factors, land, labor and capital, as we have already done the entrepreneur in the last chapter, that is people as resource. Okay, so the town is connected to the nearby city Shahjahanpur also, and the proper transport facility is also available through the village and the city, and it connected it very well. Okay, 2 characters are there in this. One is the Sakal and one is Vilas. Okay, so we are going to study about these 2 people also, who is Sakal and who is Vilas. Okay, so what we have studied till now, that agriculture is the main activity. 75% of the people are engaged in the farming, and 4 factors of productions are here: land, labor, capital and entrepreneur. And all the animals are also here, like fishing is the activity which people used to prefer, forestry, everything. Okay, so ये जो हमारी main activity है. Fine, got it? समझ में आया? Students, let's begin with the words that matter. As I have already explained you the story of the village Palampur. So begin. So land क्या है? It is a fixed renewable natural resource. ये ऐसी हमारी fixed renewable natural resource है. The word is fixed, which includes other natural resources such as water, forest and minerals. ये ऐसी फिक्स्ड लैंड आपकी कहीं पे भी नहीं जाएगी, जहां पर है वहीं रहेगी. ठीक है, और इसमें इंक्लूड होती है बाकी अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स. ओके, देन द लेबर, इट रेफर्स टू द पीपल हु आर एंगेज इन सम वर्क. क्या? people who are engaged in some work. लोग जो engaged है किसी ना किसी काम में. They are skilled labor. There are skilled labor as well as unskilled labor. Now what is the skilled labor and what is unskilled labor? यहाँ पे एक लाइन और आएगी. It depends upon the nature of work. नेचर ऑफ वर्क में कैसे? सपोज स्टूडेंट्स की अगर रोड बन रही है, ठीक है, और एक्सक्यूज मी, रोड बन रही है, ठीक है, रोड बनने में मुझे ऐसी लेबर चाहिए जो सिर्फ सामान को इधर से उधर उठा के लेकर जा सके, तो उसमें कोई मुझे स्किल्स नहीं चाहिए, वो कोई भी कर लेगा. ठीक है, और या फिर
अब जैसे इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, रोड्स बन रही है, तो मुझे कोई एजुकेटेड या अनएजुकेटेड लेबर नहीं चाहिए, कोई पढ़ी लिखी लेबर नहीं चाहिए मुझे, मेरे लिए अनएजुकेटेड लेबर भी चल जाएगी क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं करना। द वन इज एजुकेटेड इज ऑलरेडी एन इंजीनियर, वो वहां पे इंजीनियर प्रेजेंट होगा जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो वहां पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं होती। बट यस द पर्सन हु आर वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उनको मशीन्स ऑपरेट करनी है, तो एटलीस्ट उनमें इतना स्किल होना चाहिए कि वो किसी भी मशीन को ऑपरेट कर सके, ठीक है, वो हो गया हमारा लेबर फैक्टर। लैंड, ये हमारा इट इज एन फिक्स्ड, या ये कह लो इट इज एन फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, इट इज अ फिक्स फैक्टर एंड इट इज अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ये वर्ड याद रखना, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, और इट इज अ फिक्स्ड फैक्टर। लेबर अबंडेंट, इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिक्वायर्ड। अब ये सारे वर्ड्स लेबर के साथ याद रखना। फ्लेक्सिबल, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि लेबर अगर आपने 10 अपॉइंट कर ली तो रोज 10 ही आएंगी या वो ही सेम लेबर आएगी। अगर क्वांटिटी सेम रहेगी तो हो सकता है लोग चेंज हो जाए, और अगर लोग सेम रहेंगे तो हो सकता है क्वांटिटी कम हो जाए या बढ़ जाए, ठीक है। तो ये लेबर को आपका ध्यान रखना है कि एक तो ये फिक्स्ड है और ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, लेकिन लेबर हमारी अबंडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिक्वायर्ड फैक्टर है, और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल। मनी नीड फॉर डूइंग समथिंग, मनी नीडेड फॉर, आपको कोई भी काम करना है तो आपको किस चीज की जरूरत है, सबसे पहले कैपिटल की, पैसे की, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। देन कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एंड सेकेंड वन इज वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या है और आपकी वर्किंग कैपिटल क्या है। सी स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन थ्रू दिस एग्जाम्पल। मैं वापस लेकर आ रही हूँ इसे, ठीक है। ओके वेट, इसमें मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ, हाँ ये हमारी जो फील्ड है वो बेचारी इधर उधर हो गई है सारी। सी, मैं आपको कैपिटल भी समझा देती हूँ, मैं आपको लैंड भी समझा देती हूँ। वेट फॉर अ सेकेंड ओनली, यस इट इज रेडी नाउ। ये पोर्शन हमारे गिर गए, इन्हें खड़े होने की आदत नहीं है थोड़ी। सी, ये देखो, अब सबसे पहले अगर मैं बात कर रही हूँ लैंड की, तो ये लैंड मेरी फिक्स है, लैंड कहीं भी नहीं जाएगी, ये अलग बात है, मैं उसे उठा के ले आई हूँ, बट इट्स जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, बट लैंड कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। लेबर क्या है, आज 2 लेबर काम कर रही है फील्ड में, ये चली जाएगी, हो सकता है कल यही रह जाए अकेले, तो एक पर्सन भी काम कर सकता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर हमारी और एक लेबर यहाँ पर जुड़ जाए, तो ये लेबर जो है वो हमारा फ्लेक्सिबल फैक्टर है, ठीक है, लेकिन लैंड हमारा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चीज समझ में आई। दूसरी चीज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, द फिक्स्ड एंड द वर्किंग कैपिटल। सी, द लैंड इज अ फिक्स्ड, हमने अभी क्या करा, ये लेबर आ गई हमारी, ये चली गई, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, वर्किंग। क्यों वर्किंग, कैसे, यहाँ पर पैसे की रिक्वायरमेंट है, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल है तो ये तीनों काम कर रहे हैं, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो ये तीनों नहीं काम कर रहे, सिर्फ एक ही काम कर रहा है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द रॉ मटेरियल एंड द अमाउंट आई हैव इन माई हैंड, ठीक है। तो अभी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे अब हमारी टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, यहाँ पे आप प्लान भी लिख सकते हो, कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स, ये कहीं नहीं जाएंगे, आप इन्हें बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल क्या है, इट रेफर्स टू रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, ऐसा रॉ मटेरियल और पैसा जो आपके हाथ में है, दे आर यूज फॉर प्रोडक्शन। अब मैंने पैसे क्यों बोला, पैसे को लेबर से कनेक्ट क्यों करा, बिकॉज लेबर जो होती है उनको डेली वेजेस मिलती है, ठीक है। तो डेली वेजेस में क्या होगा कि आज जैसे सपोज आप 350 रुपीज पर डे दे रहे हो, तो कल अगर वो खड़े होते हैं अपने काम के लिए और उन्हें कोई 400 रुपीज देगा तो वो लोग वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये डेली वेज वर्कर्स होते हैं, वेज वर्कर होते हैं, जो शिफ्ट भी होते रहते हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, इफ दे आर गेटिंग द अमाउंट टू फीड देयर फैमिली फॉर अ 1 डे, हो सकता है वो अगले दिन काम पे भी ना जाए, ठीक है। Then the human capital. Human capital, people as resource, as we all know that. It refers to human knowledge and enterprise. Human knowledge और enterprise यानी कि ऑफिस हम जैसे बोल सकते हैं, which are required, जरूरी होता है किस चीज के लिए, to put together land को
लेबर को, फिजिकल कैपिटल को टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को एक साथ लेकर आएंगे ताकि हमारा आउटपुट आ सके। ओके, नाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल आपके यहाँ पे लैंड, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स सब आती हैं जो हमने यहाँ पढ़ी हैं, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल जो आप अभी पढ़कर आए हो, एंटरप्रेन्योर हम जिसे बोलते हैं, आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 factors of production are there, that is land, labor, capital and entrepreneur capital is further divided into 2, fixed and working capital। और human capital हम already last chapter people as resource में पढ़ चुके हैं, ठीक है। Now the last fact, that is multiple cropping। multiple cropping क्या है? To grow more than one crop on a piece of land during the years is known as multiple cropping। अब multiple cropping क्या है? जैसे जो हमारी लैंड है, ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं ऐसे, see I don't know how they will be, how they stand, but I'm trying it, ठीक है। एक ये जगह हो गई हमारी, ठीक है, एक इसे मैंने डिवाइड कर दिया, एक इसे डिवाइड कर दिया, इन्हें भी मैंने क्या कर दिया? मैंने डिवाइड कर दिया। आई होप आपको ये विजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा, वेट, चलिए मैं आपकी फील्ड जोड़ रही हूँ ताकि आपको मल्टीपल क्रॉपिंग अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक फील्ड है, ये आप थोड़ी सी डिवाइडेशन आप समझ सकते हैं, ये कुछ नहीं है, ये डिवाइडेशन है हमारी बस फील्ड की। यहाँ पर देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई फील्ड, 1 2 3। अब जब आप एक फील्ड पे बहुत सालों तक, लाइक यहाँ पे कोई और क्रॉप, यहाँ पे कोई और क्रॉप और यहाँ पे कोई और क्रॉप, जब आप ग्रो कर रहे हैं एक फील्ड में, सो दिस इज नोन एज अ मल्टीपल क्रॉपिंग। जब आप डिफरेंट टाइप्स की क्रॉपिंग को मतलब इंडिविजुअली मतलब फॉर मेनी ईयर्स आप करते हो, तो दैट इज नोन एज दी मल्टीपल क्रॉपिंग। एक ही फील्ड पे छोटी छोटी क्रॉप्स को आप डिवाइड कर देते हो, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे safe and take care of yourself, and the next facts that matter will start in the next one. Okay beta, thank you.